You all know that the NIP 2020 put in, as you all know that the NIP 2020, it has put a lot of emphasis on this holistic education or multidisciplinary education. I'm not going to delve deep into the technicalities of multidisciplinary or interdisciplinary or transdisciplinary, because as a teacher, most of you know all these things. So I'm not going to make it more boring by entering into that venture, which is called technicalities of the definitions. So basically, the first of all, we have to know as teachers that what is our role. When we try to identify our role, first of all, we think that we are educators. And since we are education, so does it mean that we are there in the classrooms or whatever spaces we have got just to pass information to the participants or the students, or something more we have to do? Is it just you know teaching syllabus and evaluation, examination, etc.? This is our job, or something more the society expects from us, from the educators? First of all, that should be our point. Most of the time, you'll find that people think, means teachers or in the academia, that our main job is to, complete the syllabus in the class on time, and then evaluating the students, examining the students, giving them marks, and also, sometime if we get time to give comments on their performance, and that is enough. I think if you see in the narrow sense of the term, this role of the teacher is okay. But keep in mind that we are living in a developing society. India is a developing country with 1.4 billion population. You all know that it is a country that is facing digital divide. It faces what is called urban rural divide. It is a country that also faces many other problems. Disparities are there. All the people are not well equipped with the technology that is available to us. And therefore, as a teacher, we have to understand the needs of the society and the expectation from the society. What happens that most of the time when we are interacting with the students, we see them only in the classroom. And this is the reason that we are not in a position to understand what kind of background they are coming from, what are the problems, challenges, they have been facing at home or in the society. And this is the reason that what is happening these days, that our connect with our students, that is weakening. One of the factors that is responsible for this is what we call privatization of education, and because of which what has happened that the producer and the consumer relation we are trying to maintain in the educational spaces. So when we teachers become producers and the students are consumers, then that relation cannot be a relation of respect, mutual help, or goodwill and all. This is the reason that it is weakening. Now, when the government is giving emphasis on holistic education or multidisciplinary education, what is the purpose then? That we have to try to understand. You must have heard about these days, AI has become a buzz term. Everybody is talking about artificial intelligence, although emotional intelligence is already declining. And you'll find that people are saying that virtual universities are coming into existence. And very soon you will find that these universities are going to replace, the universities that we have with the mud and the bricks. So therefore, the virtual universities will be there. And ultimately, what will happen that the virtual teachers will be also there. Virtual teachers, virtual spaces, and from there, even the robotics with artificial intelligence will be there to teach the students. अगर ऐसा होता है तो what is our role? Are we going to accept all these things, as it is going to happen? We are just onlooker, or we are active participant in the determination of the values in the society as well as the decision that should be made by the policy makers. That is what we have to understand. If, for example, if the artificial intelligence, is used for teaching,
by the human beings, that is one thing. But if it is becoming artificial intelligence is being used by the robots, and if they are teaching, that is, something very, very, dangerous for the society that we have to understand. इसकी रोशनी में जब हम देखने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में मिसाल के तौर पे आई एम अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, somebody must be teaching फिजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज, आप मैनेजमेंट में हो सकते हैं, सोशल वर्क में हो सकते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए या हमारे लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से या होलिस्टिक एजुकेशन से क्या यानी हम मीनिंग डेराइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है तो हम उसमें सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के बारे में और उसकी जो थीरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, अगर वो पढ़ा देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, तो मैं ये समझता हूं कि ये काम पूरा इसलिए नहीं होता कि एक जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर की तलाश में रहना। मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के टीचर्स, पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स, सोशल साइंसेज के टीचर्स, या कोई भी एजुकेटेड आदमी के लिए जो भी ग्लोबल साउथ में रहता है, जो ग्लोबल नॉर्थ में नहीं रहता है, मैं ये समझता हूं कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो एजुकेटेड है तो। इसलिए कि व्हाट इज हैपनिंग, यू मस्ट बी नोइंग दैट द 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन living in the global north is enjoying with 80% of the global resources, wealth, and all other things. On the other hand, the 80% of the world population living in the global south is reeling under poverty, starvation, and all. So therefore, that is our job. Now, for example, if we are teaching management, whatever subjects, for example, physics or chemistry or biology or literature, whatever. So ultimately, what is our role in the classroom or the spaces that we have got? अभी मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था। ऑलरेडी हमारे सामने यूनेस्को की गाइडलाइन है, द एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स। आप लोग देख लीजिएगा, आपको 2022 की है ये, द एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स, यूनेस्कोज एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है। So that हम तमाम लोगों को देखना है, this is the publication by the United Nations, and that is why as a teacher we must go through it. You will find challenges, prospects, what are the competence that is required for all of us in the changing scenario, that you will get the idea. अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है। इकबाल ने कहा कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। व्हाट डज इट मीन? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा दे दे, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप उसमें चीजें रिकॉर्ड कर दें, वो टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन तो दे सकता है। बट क्या इंफॉर्मेशन नॉलेज है? नॉलेज और लिटरेसी में कुछ फर्क है? अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही नॉलेज है, तो क्या आप ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने के लिए हम लोगों को दिया गया है? तो हम तो ये तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, या डिफरेंट जो एआई के आजकल जो टूल्स हैं उनसे कर सकते हैं। बट हम क्यों इस एक पूरे फिजिकल स्पेस में क्लासरूम एटमॉस्फेयर होता है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे होते हैं, उन्हें हम बता रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इस पूरे स्पेस की क्या अहमियत है? इसको समझने के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि हमारी एजुकेशन के साथ सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, और यही वजह है कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात की जा रही है। अब इस हॉलिस्टिक एजुकेशन में आप देखिए, अभी अहमद साहब मुझसे ये कह रहे थे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन इज एन इशू दैट हैज बीन मिसिंग इन आवर लेक्चर, सो दैट इज व्हाई फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे जेंडर सेंसिटाइजेशन पे ही बात करता हूँ। मुझे एक बहुत ही सीनियर टीचर जो आप रिटायर हो चुके हैं, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने 38 ईयर्स तक एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और मैंने अपनी क्लास में जो वर्ड्स हैं इडियट्स या स्टूपिड की तो दूर की बात है, मैंने कभी बैड लफ्ज यूज नहीं किया अपनी क्लास में।
अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैंने बैड नहीं कहा, नेवर यूज द वर्ड बैड. So sensitive about the language. So what happens when we are leaving the when we are teaching in the class, or whenever we are sharing the spaces, we are not very much sensitive about what we call, the engendering space, जिसे कहते हैं, spaces should be engendered. For example, आपने ये सुना होगा कि मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है. कहते हैं ना, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है. This language is a quite offensive language. It cannot be acceptable in a civilized society. मेहंदी को आमतौर पे औरतों से आइडेंटिफाई करते हैं, और एक मेल डोमिनेटेड, मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी में जब कोई कहता है कि मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब कि उस मेहंदी को आप सिंबल किस चीज का बना रहा है? बॉन्डेज का, सबऑर्डिनेशन का, एंड मेल डोमिनेशन का. सो अल्टीमेटली जब आप ये कहते हैं तो ये बताता है कि आई एम मेल, आई एम सुपीरियर, एंड द our counterpart, that is the female folk, they are subordinate. It means that as a teacher, if somebody is using मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है, it means that he is just committing a criminal offense, as a teacher, a cardinal sin, of course, if not an offense. You must have heard कि किसी जमाने में एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन है हमारी मुल्क की, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चूड़ी गिफ्ट की थी. और वो क्यों गिफ्ट की थी? उनको ये बताया था कि आप कमजोर हैं, आप बुजदिल हैं. What does it mean? That the perception that we have developed in our society, that values that we have imbibed, under which we treat women as subordinate, as weak, as those who are not in a position to make their own decisions. This kind of stereotype of women that we have already got in our brain, which has been deeply ingrained in our mind because of their civilizational values. So what happens because of this? We are, doing these symbolic things. But so the gender justice demands, from the teacher, that they should be very sensitive when they are using the words in the class, or the terms, or the jargons, or the terminology. We cannot afford to be so naive to use, this kind of terms or the jargons in the class. For example, you must have, India is a country. हमारे यहाँ एक अजीब सी बात यह है कि आप देखेंगे कि 90s के बाद से पोस्ट ग्लोबलाइजेशन या पोस्ट लिबरलाइजेशन जो फेज है, उसमें हमारे यहाँ बहुत सारी मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो है कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा मार्केट है. यानी आप देखिए, देहात से भी कोई औरत आए, अगर कोई और कुछ नहीं कर सकती है, तो हमारे हिंदुस्तान का ये कल्चर है कि उसमें मांग में सिंदूर लगा ले, माथे पे बिंदिया लगा ले, और चेहरे पे जो भी उसके पास अवेलेबल है, पाउडर वगैरह जैसा भी है, वो लगा करके बाहर निकलने की कोशिश करेगी. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच इनहेरेंट इन आवर कल्चर. अब हिंदुस्तान में आपने देखा होगा ये पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज में कॉस्मेटिक्स की पूरी भरमार दुकानों में होती है. सोप्स की, कॉस्मेटिक्स की, शैम्पूज की, डेली नीड्स के सामान जो होते हैं उससे ज्यादा होती है. अमान ने क्या किया? अरे बाप रे बाप, अमान इस पर चलेगा. उसके प्लीज यू शुड गो ऑन म्यूट मोड, ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज. सो यहाँ से अगर आप देखें, admin please, all the participants should go on mute mode. प्रोग्राम कर दिया. Somebody from the HRDC. Somebody must be there from the HRDC. Admin is there or not? Shakila Sahiba, please take care of your microphone, please. Shakila Nigar Sahiba, please. अब अगर हमारे इस मुल्क में देखें तो आपने देखा होगा कि लैंग्वेज यूज की जाती है कि मैट्रिमोनियल का एड देखा, जिसमें फेयर कॉम्प्लेक्शन, ब्यूटी इज आइडेंटिफाइड विद फेयरनेस. और उसकी वजह से क्या हुआ, फेयरनेस क्रीम का एक बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में. वी आर नीदर ब्लैक नॉर व्हाइट, वी हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर और कॉम्प्लेक्शन. तो हमारे यहाँ फेयरनेस को ब्यूटी समझा जाता है. अब इस फेयरनेस की वजह से क्या होता है कि आपने देखा होगा कॉस्मेटिक्स के मार्केट में फेयरनेस क्रीम बहुत ज्यादा बिकती है, और इसके नतीजे में क्या हो रहा है, outrageous kind of advertisement you'll find on televisions, outrageous kind of
एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। आपने कभी देखा होगा कि फेयर एंड लवली क्रीम का जब एडवर्टीजमेंट आता है तो पहले तो वो मर्द और औरत सब लगाते थे, उसके बाद से एक एडवर्टीजमेंट आता है मर्द होकर औरतों वाली क्रीम, मर्द होकर औरतों वाली क्रीम, दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, it is outrageous, it is quite offensive, and if it is not going to develop any kind of resentment against this kind of advertisement, I think that we are not very sensitive. यानी मर्द होना कोई इतनी बड़ी बात है कि मर्द होकर औरतों वाली क्रीम लगा रहे हैं, सो दैट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग which is very bad, which is very inferior. This kind of subtle kind of things that you'll find in the society that we have imbibed, and because of which sometimes we commit this kind of cardinal sin in our educational spaces that should not be committed at all. But moving beyond, the gender sensitization itself is something that we try to visualize society as what we call society is heterosexual according to us, according to our civilizational value. But in society we have there are many countries in the world who have criminalized all other inclinations. So today when we talk of gender sensitivity or gender justice, we take into account only the plight of the women. बट हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ वुमेन इसमें इंक्लूडेड नहीं है. व्हाट अबाउट अदर जेंडर्स? इट मे बी थर्ड जेंडर. And this is the reason that you will find today in the human rights discourse, we have LGBTQ++. LGBTQ++ when we are saying, so these are the people, who have different kind of inclinations. Earlier, their inclinations were criminalized. Many of them were killed. There are many countries in the world, those who are still having death penalty for this kind of inclinations. But today, because of the sensitization in the society, because of the human rights norm that we are developing in the society, what is happening? That people are getting sensitized. So, for example, one of the blockbusters in India from the Bollywood is Sholay. आप सबने देखा होगा. और शोले हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवीज में से एक आती है. जेंडर सेंसिटिविटी जाहिर सा जो उस जमाने में नहीं थी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी जो लिखते हैं वो गलती करते हैं, और आज भी आप देखेंगे बॉलीवुड की मूवीज में ये होता है. एज अ टीचर वी शुड पॉइंट आउट. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि एक डायलॉग था उस फिल्म में, विच इज क्वाइट आउटरेजियस ऑफ कोर्स, कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है. What does it mean? What about the transgender? Have we ever thought that there are people, a microscopic minority in our country, how they will feel when they are watching this kind of movie, or if they are hearing this? This is the reason that as a teacher, we should be very much, whenever we are using language, this kind of language we cannot use. So that's why what is happening that almost 85 countries of the world, they have already decriminalized. Many of the countries, they have already recognized the rights of the sexual minority. They are the LGBTQ++. And today, that is why it is not only the male and female binary that is there in the society, the gender justice or the gender sensitization, but, acceptability or recognition, at least, not harming them, those who are having this kind of an inclination, that is something that has been accepted all over the world because of the human rights sensitization. I am not, here to, legitimize or delegitimize anything. I'm just putting forward, these are the arguments that are already there, and these are the issues that are already there in our academic spaces. अब यहां से आप आगे बढ़िए, तो जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप हो सकता है नेचुरल साइंसेस के हों, आपको जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में अगर आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा, तो इस तरह के कार्डिनल सिन आप कमिट करेंगे, और कभी कभी यू मे लैंड इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस. यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात पे जोर दिया है इस पूरे इसमें कि देयर शुड बी होलिस्टिक एजुकेशन, देयर शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, या मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस.
as a responsible citizen, you must be aware of all these things. You cannot afford to commit this kind of sin in educational spaces. आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत प्लेटो के स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में. यानी प्लेटो जो कहता था कि नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज. तो प्लेटो ये कहता था वर्च्यू इज नॉलेज, नॉलेज इज वर्च्यू. इट मींस देयर कैन नॉट बी वर्च्यू विदाउट नॉलेज एंड देयर कैन नॉट बी नॉलेज विदाउट वर्च्यू. अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखने की कोशिश करें तो प्लेटो ने अपनी स्कीम ऑफ एजुकेशन में जो उसने बताया 0 से 10 ईयर्स तक क्या करना होगा, आगे क्या पढ़ना होगा, हायर एजुकेशन 35 ईयर्स तक. आप जानते हैं कि 0 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक एजुकेशन वो कहता है कि जो गार्जियन क्लास है उसे लेना है. उसने कहा कि व्हाट इज शुड बी देयर इन दी जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की एजुकेशन है, उसमें उसने कहा कि म्यूजिक फॉर द सोल एंड जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी. यानी उसमें क्या होना चाहिए, एक फिजिकली फिट पर्सन बनाने आपका होना चाहिए. तो जिम्नास्टिक, फिजिकल एक्सरसाइजेस फॉर द बॉडी एंड म्यूजिक फॉर द सोल. And music, he is using the broader term. It is poetry, it is other art. जितने भी फनून लतीफा हो सकते हैं सब. So the artistic expression, all these things must be there. That should be inculcated in a student. That should be the scheme of education. Then higher education will be given. अब अगर मान लिया कि हमारे सामने कोई शहनाई बजाए. आप जानते हैं कि हिंदुस्तान म्यूजिक के लिए, हिंदुस्तान आर्ट के लिए, हिंदुस्तान आर्किटेक्चर के लिए और डिफरेंट जो हमारे आर्ट फॉर्म है उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. और ये हमारी जो सिविलाइजेशन है 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, उसमें डीपली इनहेरेंट है इन तमाम चीजों में. तो अल्टीमेटली आर वी एबल टू अप्रिशिएट ऑल दिस थिंग्स? अगर हमारे सामने कथक है या डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, डांस फॉर्म है, आर वी एबल टू अप्रिशिएट इट? डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री, आर वी एबल टू अप्रिशिएट? आपके सामने पेंटिंग है, उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमसे कोई बहुत अच्छी पेंटिंग रख दे और उसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और कोई पूछे तो आर वी एबल टू इंटरप्रेट ऑल दोस थिंग्स? दिस इज द रीजन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट दैट अ होलिस्टिक approach should be adopted, multidisciplinary approach should be adopted for higher education especially. Now you see that मैं आपसे जब ये कहता हूं कि why this sensitization is needed, आपने कभी देखा होगा कि did we ever question that why this color white, यानी जो कलर व्हाइट है इसे कलर ऑफ हैप्पीनेस, हार्मनी, ब्रदरहुड, पीस कहा गया है. यानी व्हाइट फ्लैग अगर आप दिखा दें तो पीस एंड हार्मनी, और अगर ब्लैक फ्लैग आप दिखा दें तो ये एजिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, मॉर्निंग है, सैडनेस है. ऑल हु डिटरमिन्ड ऑल दिस? दिस कलर color black should be bad and color white should be good. Did we ever question that what is so good with white and what is so bad with black? And if you go through the pages of history and if you try to understand, then you will find some kind of hint towards what is called white man's burden theory. White was considered as something superior, good, and that is why the white flag or the white is something that is always in our memory, in our collective conscious, it has been ingrained that white is good and black is bad. And that's why you'll find the poetry of resistance, black is beautiful. The Africans say that black is not bad, black is beautiful. As an Indian who have already, because our country has tasted the bitterness of colonialism, racial discrimination. We have seen the worst form of racial discrimination in South Africa. India was championing the cause of the people, of those who were black over there. And you'll find Nelson Mandela used to call himself as a Gandhian. Mahatma Gandhi inspired him. There are many people, those who are resisting the onslaught, any kind of onslaught, they proudly claim that they are Gandhian in every nook and corner of the world. So you see that India championed the cause. अब अगर मान लिया कि ये ब्लैक ऐसा क्यों है कि इसे कलर ऑफ एंगर बना दिया गया, कलर ऑफ सैडनेस बना दिया गया?
एंड फेयरनेस को या वाइट को अच्छा बना दिया गया. एंड दिस इज द रीजन दैट in a country where the majority of the population is not having fair complexion, you will find that in the matrimonial ads, most of the time you will find what kind of bride or groom, the complexion should be fair. Fairness is not beauty. And it is not beauty, and that's why, it should be, something should be, of course, resisted, and it should not be accepted by all of us. And that's why, this kind of critical thinking we can develop only when we are having a holistic approach to education. We have, interdisciplinary, multidisciplinary approach to various issues. And this is the reason, that is why, the critical reasoning is one of the things that we are going to get because of the multidisciplinary approach towards different issues. अब अगर आप इससे आगे बढ़े, आपने कभी देखा होगा, वी हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड के एम्प्लॉइज होते हैं. एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो डेली वेज अर्नर्स की होती है. द डेली वेज अर्नर्स, दोज हु आर नॉट इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. आप अगर रामघाट रोड से यहाँ पे आते हैं या दूधपुर के चौराहे पे आते हैं सुबह 8 बजे से पहले, जो लोग क्लासेस के लिए जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में मजदूर खड़े होते हैं. वो अपने घर से एक छोटा सा टिफिन होगा, हो सकता है उस टिफिन में रोटी, प्याज और नमक रखा हो, और बड़ी तादाद में रहते हैं. उनको फिर कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, उनको बुला के ले जाते हैं. कुछ लोग को काम मिल जाता है, कुछ लोग वापस चले जाते हैं. और जब वो वापस जाते हैं तो उनके घर में, जब वो घर से निकले होते हैं बेसिकली, तो घर के लोग ये वेट कर रहे थे छोटे बच्चे के, बाप जब कमा के लाएगा शाम में तो साथ में आटा चावल दाल भी लाएगा. हो सकता है वो उस दिन बेचारा खाली हाथ चला जाए. हो सकता है वो 15 दिन बाद काम पे आया हो, 15 दिन तक बीमार हो और उसे काम नहीं मिला. But we never, try to know that what is their problem, what is their plight. Keep in mind that there are 1,000 people who are standing over there. Maybe 700 or 800 people will get the work, and 200 have to, go back. So it means that these are the people whose dependencies can be exploited by the contractors or by the petty contractors or by the people, those who are at the helm of affairs, because they are dependent people. तो जो डेली वेजेस एक्ट का उसका वायलेशन कर सकते हैं. अगर मानिए उनकी मजदूरी 500 रुपये होती है, तो कहेगा कि देखो 300 रुपये में तैयार हो जाओ. अगर वो 300 में तैयार नहीं होता, दूसरा आदमी जिसके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, बोले साहब 250 रुपये दे दीजिए, मैं तैयार हूं काम करने के लिए. These are the things that we never try to realize. And this is the reason that a large number of our, people, our own, people of our own country, they are living in a condition that is, that cannot be called a human condition. Subhuman conditions are there. But, this is also our responsibility, those who have got, education and all, that who will raise their issues. And that's why I will say that even if you are teaching sciences, natural sciences or whatever, you must read the books like Maxim Gorky's The Mother. और फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल टू आर्म्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या मैगजिम गॉर्की की आप द मदर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ आवर ओन पीपल, दोज हु आर इन, एंड दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी आप सुनिए. मिसाल के तौर पे किसी मजदूर से किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं. उसने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं. उसने कहा बच्चे आपके कितने बड़े बड़े? तो उसने कहा मेरा एक बच्चा इतना बड़ा है, एक बच्चा इतना बड़ा है और एक बच्चा इतना बड़ा है. तो सामने वाला हंसने लगा और बोला कि नहीं, बच्चों को ऐसे नहीं बताते, बच्चों को बताते हैं कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और इतना बड़ा. अब देखिए मजदूर बता रहा है, वो मजदूर. और आप इस प्लाइट को याद कीजिए कि आज तो डेली जो सोशलिस्ट मूवमेंट की वजह से आपको 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करा सकता, ट्रेड यूनियंस है जो उस पर आवाज उठाती हैं. बट आपको याद होना चाहिए कि हमारी ही सोसाइटी पे 19वीं सेंचुरी से पहले 14 घंटे काम करना पड़ता था मजदूर को, सुबह से शाम तक. तो जब वो सुबह से शाम तक काम करता था और घर पे जब वापस आता था, तो उसके सामने क्या पोजीशन में बच्चों को देखेगा. तो अल्टीमेटली मजदूर ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बताया कि मेरे बच्चे इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इसलिए कि जब मैं काम करने जाता हूं तो मेरे बच्चे सो रहे होते हैं.
और जब मैं काम करके वापस आता हूं तो मेरे बच्चे सो चुके होते हैं। मैंने अपने बच्चों को वैसे नहीं देखा जैसे आपने देखा है। While celebrating birthday and other things, हम जब अपने बच्चों की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप की, तो वही हमारी मेड भी होती है ना, और वो भी काम वाम कर रही होती है, उसके भी बच्चे होते हैं छोटे, वो अपने बच्चों को छोड़ के आकर के हमारे यहाँ काम कर रही होती है। अब आप देखिए कि हम एक वायलेंस कमिट करते हैं जो हमें नहीं मालूम होता, और उस यानी वायलेंस सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता है जिसमें मर्डर, रेप एटसेट्रा है। वायलेंस कल्चरल वायलेंस भी होता है, वायलेंस जो होता है वो सिंबॉलिक वायलेंस भी होता है। सिंबॉलिक वायलेंस इस तरह से होता है कि जब मान लिया कि हमारे यहाँ कोई पार्टी है, जो हम लोगों की क्लास यानी मिडिल क्लास में अगर कोई बर्थडे पार्टी आप कर रहे हैं, तो आमतौर पे कोई गिफ्ट लेके आएगा, आपके पास 2-4 हज़ार का गिफ्ट लेके आता ही है। उसमें वो काम करने वाली जिसके 5,000 रुपया तनख्वाह आप देते हैं, उसमें उसको अपना घर भी पालना है, लेकिन वो भी सोच रही है कि घर में जो बच्चा है उसको हम भी गिफ्ट दे रहे, तो हो सकता है 200 रुपये की कोई चीज खरीद के लेके आएगी, और वहां पे बहुत कीमती 4,000, 5,000, 10,000 के लोग गिफ्ट लेके आए हुए हैं, जैसे जिसके ताल्लुकात। तो वो जो है वो कहाँ रखे उस 200 रुपये के अपने छोटे से गिफ्ट को, जहाँ पे 5,000 और 10,000 के गिफ्ट रखे हुए हैं। तो वो जो सफर करती है उसको कहते हैं सिंबॉलिक वायलेंस। आपका ड्राइवर हो सकता है, आपकी मेड हो सकती है, आपका माली हो सकता है, या आपके गरीब रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो जो सिंबॉलिक वायलेंस होता है, वी कमिट एवरी डे एंड वी नेवर रियलाइज, एंड देयरफॉर दैट सेंसिटाइजेशन इज नीडेड कि इसलिए शेख सादी एक बहुत मशहूर पोएट है, उनकी हिकायात बहुत मशहूर है, एनेक्डोट्स बहुत मशहूर है। वो कहते हैं कि किसी ऑर्फन की मौजूदगी में, लव नॉट योर चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्फन, किसी यतीम बच्चे की मौजूदगी में अपने बच्चे के सर पे हाथ मत रखिए। दिस इज व्हाट सेंसिटाइजेशन इज। क्लासरूम में जब हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं और मम्मी पापा का जब एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, तो हमें नहीं मालूम हो सकता कि 60 और 70 के स्ट्रेंथ में हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिसकी माँ नहीं हो या जिसका बाप ना। हाउ सेंसिटिव वी शुड बी। हो सकता है उस बच्चे का डिस्कनेक्ट हमसे इस बात से हो जाए कि हमारे एग्जाम्पल में हमेशा मम्मी पापा आते हैं और उस बच्चे के पास मम्मी पापा नहीं है, या हमारे एग्जाम्पल में मम्मी आती हैं या पापा आते हैं और उसके पास कोई नहीं है इस तरह का। So therefore, that sensitivity is also needed as a teacher, and that is why, the connect that is missing today, that can be revived only when we are very much conscious of the people or the audience that is before us. कार्ल मार्क्स का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि उसने ये जिसकी बात मैं कर रहा था कि हमारे 3 बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े हैं, जो उसने बताया, तो उसने इसी को एनालाइज किया और उसने कहा कि ये एलिनेशन डेवलप होता है इस पूरे सिस्टम में। उस सिस्टम में एलिनेशन इसलिए डेवलप होता है कि 14 घंटे आप काम कराते हैं, हॉलीडेज होते नहीं, उस जमाने में नहीं होते थे, कार्ल मार्क्स के जमाने में। तो अल्टीमेटली उसने इसी के लिए आवाज उठाई। तो वो कहता है एलिनेशन सबसे पहले किससे डेवलप होता है? एलिनेशन फ्रॉम द नेचर डेवलप होता है। यानी फूल खिले हैं बागों में, चिड़िया चहचहा रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक 14-15 घंटे काम किया हुआ आदमी, वो भी हैजार्डस, मशीन भी इतनी एडवांस नहीं थी उस जमाने में, तो वो सबसे पहले जो एलिनेशन डेवलप करता है वो नेचर से डेवलप करता है। एसेंस उसका खत्म हो जाता है ह्यूमैनिटी का। फिर वो डेवलप करता है एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी, वो सोशल गैदरिंग को एंजॉय नहीं करता। फिर वो एलिनेशन डेवलप करता है जिसे कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द आर्ट एंड लिटरेचर। उसके लिए गालिब और मीर की गजल कोई मानी नहीं रखेगी। ही इज अ वेरी टायर्ड काइंड ऑफ पर्सन, मैकेनिकल काइंड ऑफ वर्क कर रहा है। फिर वो जो एलिनेशन डेवलप करता है, उस एलिनेशन कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द फैमिली। यानी एलिनेशन फ्रॉम द फैमिली में यही होता है कि वो अपने बच्चों को भी हंसता खेलता किलकारियां मारता नहीं देख पाता। तो एलिनेशन फ्रॉम द फैमिली, वो एक मैकेनिकल आदमी होकर रह जाता है जो बेचारा काम कर रहा है या बेचारी काम कर रही है, मजदूर औरत और मर्द दोनों है। तो जब ये आते हैं, अब वो फिर एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द वर्क दैट ही इज डूइंग। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए अपने आप में कितना, और वो फिजिकल वर्क। आपने देखा होगा हम जब दिवाली और ईद मनाते हैं, तो ये जो मजदूर होते हैं
जहाँ पे घर बन रहा होता है वहाँ पे ईंट रखी रहती है, एक छोटी सी यानी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बना करके वहाँ पे रहते हैं। दीपावली में हो सकता है वो बिहार के रहने वाले हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, और आप अपने घर में जब अपने बच्चे के बहुत सारे कपड़े बना रहे हैं, मिठाइयाँ ला रहे हैं, 1 हफ्ते से पहले सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो उस दिवाली के दिन एक छोटा सा दिया अपने उसी ईंट पे, जो आपकी ईंट है, उस पे जला करके बैठे होंगे, और जो छोटी-मोटी बेचारे जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उसी से अपनी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पता नहीं हम लोग कितने लोग उसको उनको शरीक कर पाते हैं अपनी खुशी में। अल्टीमेटली होता क्या है? आप ये समझते हैं कि एक औरत, और ये वो तबका है, या दिस इज अ क्लास दैट हैज बीन वर्किंग राइट फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 ईयर्स। 12-14 साल की उम्र से काम करता है, घर के सारे लोग काम करते हैं, और ये अपनी जिंदगी में सैकड़ों घर बना चुके होते हैं, लेकिन इनका अपना कोई घर नहीं होता। अब अगर मान लिया कि ये जो चल रहा है मामला, तो एक औरत जो सुबह में आती है 9 बजे, अपने बच्चे को वहीं पे धूल धक्कड़ में बैठाल देती है, और फिर वो ईंट उठाती है और सीढ़ियों से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। उसका हस्बैंड भी वही काम कर रहा है, वो भी वही काम कर रही है, वहां पे चोट लगने का खतरा है, बच्चे वहीं पे धूल धक्कड़ में खेल रहे हैं, वो भी इंसान है हमारी तरह। और देखिए कि वो जो औरत, आप कैसे सोचते हैं कि उसको, शी मस्ट बी एंजॉयिंग दैट काइंड ऑफ वर्क। तो एलिनेशन फ्रॉम द वर्क, यानी 10 ईंट एक सर पे उठा के एक औरत सीढ़ियों पे चढ़ती है और फिर वापस आती है, फिर वो काम कर रही है। शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू एंजॉय दैट वर्क, क्योंकि जो वेजेस भी उसके बाद जो दिए जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अ, अब इसके बाद अगर अब हम जाएं, यहां से जब हम निकलते हैं, तो फिर एक एलिनेशन डेवलप होता है जिसे कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम हर सेल्फ और एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। यानी एक स्टेज आती है जब इंसान खुद भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जिसपे वो कभी बहुत ही प्राइड फील करता था कि मैं फला जगह का हूँ, फला कास्ट से हूँ, फला जगह का हूँ। ये सारी चीजें जो प्राइड उसके थे, सब वो अपना भूल जाता है, और जिसे कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। तो कार्ल मार्क्स ने इसी को सेंसिटाइज करने की कोशिश की, एंड अल्टीमेटली हमारे सामने ये जो इस तरह की स्टोरी जब आप पढ़ते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि कोई रिक्शा चलाने वाला या कोई मजदूरी करने वाला, उसकी वेजेस हमें देते वक्त कितना काइंड होना चाहिए, उनके साथ कितना काइंडनेस से पेश आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ढाबे पे जब बच्चा काम करता है तो उसको हम किस तरह से बुलाते हैं? छोटू, रामू, आमतौर पे ये नाम होते हैं। वो हो सकता है बहुत गरीब घर का बच्चा हो, लेकिन उसकी माँ ने उसका नाम हो सकता है राजा रखा हो। वो बहुत गरीब घर का बच्चा हो, लेकिन हो सकता है उसकी माँ ने उसका नाम प्रिंस रखा हो। उसका, आप सोचिए, वो बहुत गरीब घर का बच्चा हो, लेकिन उसकी माँ ने उसका नाम हो सकता है अशोक रखा हो, और अशोक राजा उसके जहन में हो। लेकिन हम उसको छोटू, रामू बुलाते हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल इन आर स्पेसेस एट लीस्ट, और यह हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। So that's why this multidisciplinary approach is needed to understand all these things. यानी हम रोबोटिक्स थोड़ी हैं। हम एक रोबोट की तरह क्लास में गए और जल्दी जल्दी अपने सिलेबस पढ़ाया और वापस चले आए, और हमने ये सोचा कि हमने अपना काम कर दिया। दिस इज नॉट कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिलेशन, एट लीस्ट इन द एजुकेशनल स्पेसेस। इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट आपको रोल मॉडल समझते हैं। आप जैसा ड्रेसअप करते हैं वैसा ड्रेसअप करना चाहते हैं, आप जैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोलना चाहते हैं, जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलना चाहते हैं। सो दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू रियलाइज। अब अगर मान लिया कि एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डेवलप आवर कैपेसिटीज, कैन वी फॉरगेट दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर more than 5 lakh farmers have committed suicide with their families? हमने कभी सोचा है कि एक कंट्री जहाँ पे मास सुसाइड वी आर विटनेसिंग, ये सुसाइड क्यों होती है? इस पूरे सिस्टम को हमें समझना और इसको डीमिस्टिफाई करना, या इसको डिबंक करना, डिकंस्ट्रक्ट करना, दैट इज आवर जॉब। एंड फॉर दैट, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की और इंक्रीज प्रोडक्शन की बहुत बात होती है, बट उसका तो एक पूरा पैकेज है ना। अगर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आप बोते हैं तो उसी के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए होता है। अल्टीमेटली एक जो छोटा किसान है उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसके आसपास के तमाम खेत किसी बड़े फार्मर के हैं, लैंडलॉर्ड के हैं, तो उसके खेत की मजबूरी ये हो जाती है कि उसको अल्टीमेटली मनी लेंडर से पैसे लेकर के
और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह लेना पड़ता है, और गिरवी जमीन रखनी पड़ती है, अपनी अपने खेत रखने पड़ते हैं, उसके पास कोई ग्रांटर नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली वो यही करता है। और फिर सूद इतना बढ़ जाता है, एक क्रॉप फेल हो गई, दो क्रॉप फेल हो गई, तो सूद इतना बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो अपना खेत या अपना घर बेच दे। ऐसी हालत में आपने देखा होगा कि पहले फार्मर ने सुसाइड किया, मोस्ट ऑफ द टाइम द हाईएस्ट नंबर इज मेल में, सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड में मेल में पहले होता है। यहाँ पे हमें फिर औरतों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो औरत जब उसका यानी हाउस वाइफ है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया, 4 बच्चे भी साथ छोड़ गया, अपने माँ बाप को भी साथ छोड़ गया, वो औरत बेचारी स्ट्रगल करती है, अपने बच्चों को पालने की कोशिश करती है, और सास और यानी इन लॉज की भी देखभाल करने की कोशिश करती है। और अल्टीमेटली जब उससे कुछ नहीं हो पाता, बेचारी बहुत टूट जाती है, तो कुछ केसेस में ये भी होता है कि वो अपने बच्चों को जहर देके खुद भी जहर खा के मर जाती है। ये हमारी कंट्री में हो रहा है, और हम इससे आंखें बंद करके अपने सामने अपने लोगों को मरता हुआ कैसे देख सकते हैं? वेयर इज आवर सेंसिटिविटी? तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे यहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर नॉट ओनली the industry to produce graduates or the postgraduates or the PhDs. They are basically spaces where we have to understand the plight of the people. अब अगर मान लिया कि हम इस स्पेस में हैं और इन इश्यूज को डिस्कस करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और उनको सेंसिटाइज करते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा ना, यानी जिसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। सॉल्यूशन आपको तलाश करना है। अब सॉल्यूशन कहाँ है? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हम जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, एंड दैट इज द एम ऑफ द नेप 2020, जो मल्टी डिसिप्लिनरी और क्या नाम है, होलिस्टिक एजुकेशन की बात हो रही है। एंड दिस एग्जाम्पल मस्ट अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स द लार्जर इश्यूज एज वेल। आपने कभी सोचा है कि ये दांतीवाड़ा रीजन और बस्तर रीजन में आजकल काफी ऑपरेशन चल रहा है जिसमें काफी नक्सलाइट्स मारे जाते हैं? ये ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग होते हैं, और वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं, अल्टीमेटली रिटेलिएशन होता है एंड दे आर किल्ड। अभी बहुत बड़ी तादाद में मारे गए, इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में 100 से ज्यादा एक बार में दांतीवाड़ा में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए थे। अब ये मतलब आप इसमें देखिए टर्मिनोलॉजी भी क्या होती है, यानी वर्ड्स कि किसको शहीद कहना है, किसको शहीद लिखना है, और किसको लिखना है किल्ड, मार्टियर्ड एंड किल्ड। ये भी जर्नलिस्ट अगर आप हैं, आप मीडिया में हैं, तो यू शुड बी वेरी मच कॉन्शियस। आप जब पढ़ा रहे हैं और पब्लिक प्लेस पे बोल रहे हैं तो वेरी मच कॉन्शियस। लोग दोनों हमारे हैं, यानी वो हमारे दोनों लोग हैं। अब देखिए, एक स्टडी की गई, उसमें पाया गया कि ये उस रीजन में जहाँ पे 1967 ऑनवर्ड जो आपके यहाँ रेड टेररिज्म या माओइज्म बढ़ा, उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखें तो 70 साल ये कहा जा रहा है कि टीचिंग में और डॉक्टर्स के प्रोफेशन में 70 साल रिटायरमेंट एज कर दिया जाए। हमारी प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी, वेट ज्यादा बढ़ रहा है, कम कैसे करें? शुगर एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें, ओवर ईटिंग एंड ऑल, वेस्टेज, सब कुछ है। अगर आप देखेंगे वो जो दांतीवाड़ा बस्तर रीजन में जो एक एवरेज वेट होता है एक वेल ग्रोन ट्राइबल पर्सन का, वो 45 to 50 kg होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नॉट मोर देन 55 years। 30 to 40% प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स होती हैं। दे हैव नॉट सीन हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, schools, and they have not been in a position to what we call reap of the fruit of development and progress of the country. अब उनको कैसे मालूम होता है वेयर इज इंडियन स्टेट, व्हेन डू दे सी इंडियन स्टेट? उनको मालूम होता है कि वो, एंड दीज आर द आदिवासी पॉपुलेशन, दिस आदिवासी पॉपुलेशन हैव बीन लिविंग इन द जंगल in complete harmony with nature. They have not provoked nature to retaliate. People have been talking about global warming, climate change and all. But what happens, for example, we are going for the developmental work. So, some private company has been given the mining right in a particular area which is occupied or inhabited by these people.
where they have been living in for centuries. Now, if the mining is going on in an area, that is inhabited by them and it is full of greenery, what will happen because of that mining? First of all, flora and fauna, greenery, everything will be, destroyed. The water sources, whatever ponds they have, और जो भी उनके हैं, that will be destroyed. ऐसी हालत में क्या होगा कि उसमें जिसे कहते हैं कि एक पूरा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा उस इलाके का, और उसका जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. Now these people, first of all, they come to agitate, they protest, or finally, since development is also needed because we have a large population, we have to feed 1.4 billion people, and this is the reason that we have to strike a balance. So ultimately, we send our paramilitary forces, to defend the right of the private actors. अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट में आप जानते हैं कि लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं. अब अगर मान लिया कि आप कहते हैं नहीं साहब हम आपको रिहेबिलिटेशन करेंगे और आपको अपने एरिया से हट करके दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाना, आपने ये कहा. वो कहते हैं ये सेटल नहीं कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अप्रूव अस. तो आप कहते हैं कि नहीं हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको कॉलेज एजुकेशन और स्कूल और सब कुछ मिलेगा. रिहेबिलिटेशन के जो हमारे यहाँ हाल है वो आप सब लोग जानते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, रिहेबिलिटेशन किस तरह का होता है. Now they will say that we are the autonomous people. We have, been living in this jungle in complete harmony with nature. और हमें आपने किसी बेनिफिट के लिए कभी नहीं सेलेक्ट किया. तो आप बोलते हैं कि आप नहीं जानते हैं कुछ, यानी जो जॉब्स के लिए या डिफरेंट चीजों के लिए आपको हम कैसे सेलेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे. सो नाउ यू सी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में आपको और आगे बढ़ के देखना पड़ेगा कि क्या अब मैं आपसे सवाल करूं कि व्हाट इज नॉलेज. तो आप नॉलेज का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स, वी नो आवर सराउंडिंग्स, दैट इज आवर नॉलेज. अब हमारा 10 साल का बच्चा जिसको हमने कॉन्वेंट में पढ़ाया है, जिसको हमने एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ाया है, एयर कंडीशन कार में घर से पहुंचाया है स्कूल तक, और ट्यूशन भी रखे हैं और बहुत सारी चीजें की हैं, वो बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई जानता है, वो ईमेल और फीमेल में फर्क जानता है, वो इंटरनेट यूज कर सकता है, वो टाई लगा सकता है, उसको टाई बांधना आता है, ऑल दिस थिंग्स ही नोज. तो वो बहुत एजुकेटेड है. वो आपको पोएम सुना देगा, यानी जॉनी जॉनी यस पापा सुनाएगा बहुत झूम करके एक्शन के साथ, और हम कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा, यानी बच्चा बहुत अच्छा है, वेरी इंटेलिजेंट है ना. एक पूरी ट्रेनिंग होती है. लेकिन वो बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई, एम फॉर मैंगो पढ़ता है, लेकिन हो सकता है वो बच्चे को दिखाइए कि बेटा ये पेड़ किस चीज का है, तो मैंगो खा तो लेगा, और मैंगो उसने देखा है तस्वीर भी, लेकिन वो मैंगो का पेड़ कैसा होता नहीं बता पाएगा, सेब का पेड़ कैसा होता नहीं बता पाएगा, 10 तरह के पेड़ वो नहीं बता पाएगा. लेकिन जब आप सराउंडिंग्स की बात कीजिएगा, दैट आदिवासी चाइल्ड ऑफ 10 years हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सराउंडिंग. वो जिस जंगल में रहता है वहां जानवर की आवाज सुनकर बता देगा किस जानवर की आवाज है, दूर से चिड़िया की आवाज सुनकर बता देगा कौन सी चिड़िया बोल रही है. वो बच्चा वो जो श्रब्स होते हैं, जो हर्ब्स होती है, जड़ी बूटी होती है, उसको देख के बता देगा कौन किसके काम में आएगा, कौन सांप जहरीला होता है, कौन सा नहीं होता है. हमारे लिए हर सांप जहरीला होता है और हम मार डालते हैं उसे. This kind of perfect understanding of the surrounding that an Adivasi boy or the child has got, or the the boy or the girl, that has got, that our children don't have. But what has happened that we have not recognized that knowledge that they have. For thousands of years they have maintained their own oral tradition, and that's why they know. आज के जमाने में क्या हो रहा है कि उनकी जड़ी बूटियों के नॉलेज उनसे लेकर के और हम पेटेंट कर लेते हैं, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही हैं, जबकि दिस इज द नॉलेज दैट दीस पीपल हैव बीन पॉसेसिंग. हम सिर्फ आदिवासी तेल का प्रचार देख रहे होते हैं, और उसके अलावा वी नेवर नो कि अल्टीमेटली व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजर ऑफ नॉलेज दिस पीपल हैव. सो द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, I will suggest, it must go beyond this, that, इकोनॉमिक्स के लोग पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस के लोग अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए जा रहे हैं तो वो बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस और डिफरेंट तरह के लोगों से मिलकर के काम कर ले. दिस मच इज नॉट एनफ. व्हाट अबाउट दिस ट्रेजर ऑफ नॉलेज दैट कैन बी लॉस्ट और दैट कैन बी
misused or that can be exploited by others. These people, those who are living in the jungles and those who have developed this kind of thing, they don't know what is patent and what is intellectual property right. हम अपने law उनके ऊपर apply करके बेचारों को हम marginalize कर रहे हैं. This issue of marginalization, this issue of social exclusion, this issue of uprooting, this जिसे कहते हैं उजाड़ देने का जो पूरा हमारा जो स्टेट सिस्टम पूरी दुनिया में है, आज की डेट में एवरी डे पूरी दुनिया का अगर आप डेटा देखेंगे तो 2 इंडिजिनस लीडर या पर्सन आफ्टर एवरी डे दे आर किल्ड. दिस इज द पोजीशन बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रेजिस्ट. अब जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो फिर ये ग्रीनरी, ये पूरा जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको खत्म कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास? और आप खाएंगे क्या? ये लोहे के सामान और स्टेनलेस स्टील खाने के थोड़ी काम आएंगे. सो देयरफॉर वी हैव अर्बन प्लानिंग. वेयर इज आवर रूरल प्लानिंग? हम अर्बन प्लानिंग पे बहुत जोर देते हैं, मेगा सिटीज पे देते हैं, और हम बात करते हैं कि साहब हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे. व्हाई नॉट स्मार्ट विलेजेस? स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, व्हाई नॉट स्मार्ट विलेजेस? Why should we compel people to migrate from the villages to the big cities and live in in slums? Why don't we have the program of smart villages? And that is why, unless we stop the migration of the people or the exodus of the people from the rural area to urban areas, we cannot solve our problems. This is the reason that when we are going to have this holistic approach, all these problems, all these issues, whatever we have before us, that must come to our mind. And that's why that we have to develop this critical thinking or this critical reasoning or this critical approach among our students. We have to inculcate, we have to make them thinking individual. It is not only that these people, हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही हाई फाई बातें बता दें, हम उन्हें बोरोड एक्सेंट के साथ बोलना अंग्रेजी सिखा दें, दिस मच इज नॉट एनफ. हम हमारी जमीन से जुड़ी हुई चीजें अगर हम नहीं बताते हैं. आपने सोचा है कि कभी यही सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने इस लायक कभी नहीं समझा था कि वो हमारे साथ बैठ करके एजुकेशन हासिल कर सके, वो हमारे साथ बैठ के खाना खा सकें, हमारे गांव में या हमारे यानी हमारे तालाब से जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ खास कम्युनिटी के लोग पानी नहीं पी सकते थे. तो अगर मान लिया कि ये सोसाइटी हमारी रही, तो सोसाइटी से हम जब प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वेयर इज सेंसिटाइजेशन अबाउट द प्लाइट ऑफ द पीपल, दोज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड, दोज हु वर डिक्लेयर्ड एज अनटचेबल्स, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच these people could not develop or could not reap of the fruit of development of the country. So ultimately, since these are the people who have been exploited, those who have faced this kind of treatment, so that is why we must be very much sensitive about the plight of these people who were exploited. उनकी क्या गलती थी? पावर स्ट्रक्चर में बेचारे मार्जिनलाइज कर दिए गए और अल्टीमेटली उनको एजुकेशन नहीं दिया गया. आज की डेट में फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर talking about our own society, where you'll find society is male dominated, society is male chauvinist, and still बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस होती है. आपने गांव और देहातों में देखा होगा कि एक घर में अगर 4 बच्चा है और उसमें 2 बच्ची है, 2 बच्चा है, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छे स्कूल, या घर में अगर 1 लीटर दूध आता है तो दोनों बच्चे को 1-1 गिलास दूध दे दो और लड़की को मत दो. हम लोग इससे आगे निकल रहे हैं, अच्छी बात है कि इससे बाहर निकल रहे हैं. आपने ये सीन भी देखा होगा, एड एक ह्यूमन राइट्स की मैगजीन में मैंने देखा था कि एक 10-12 साल की बच्ची है जो अपने 5-6 साल के भाई को गोद में उठा करके और स्कूल पहुंचा रही है, और वो फिर वापस आ रही है घर का काम करने के लिए. कौन सा ये डेवलपमेंट का मॉडल है कि जिसमें हमारी 12 साल की बच्ची जो है वो अपने भाई को स्कूल पहुंचा के आगे फिर घर का काम करेगी? वेयर इज आवर जेंडर सेंसिटिविटी? अब अल्टीमेटली आप देखिए, इन्फेंटिसाइड हमारी कंट्री में होता है, फिटिसाइड हमारी कंट्री में होता है, और इन्फेंटिसाइड के इतने ब्रूटल प्रैक्टिस है इस सोसाइटी में. कुछ जगहों पे इन्फेंटिसाइड यानी अगर लड़की पैदा हो गई, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए उस बच्ची पैदा होती है उसके मुंह में नमक डाल दिया.
द बेबी जिसे कहते हैं ना, bleeds profusely and then dies. धान डाल देते हैं, बहुत शार्प एजेस होते हैं उसमें. This has been reported by the human rights organizations and the activists, those who are already working. तो फिर कौन सा इस सिस्टम का पूरा फायदा, हम विश्व गुरु की भी बात करते हैं, हम कहते हैं बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, बहुत ही नॉन वायलेंट लोग हैं, गांधी का देश है. हमारे देश में डॉरी के लिए रोज 24 घंटे के अंदर कम से कम, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही यानी डेटा उठा के देखिएगा, तो 24 घंटे के अंदर 10 से ज्यादा औरतें और लड़कियां जला दी जाती हैं, इसलिए कि जहेज नहीं ले पा रही है. उनको जहेज लाना है, घर से मांग के लाना. So, what kind of non-violent people we are, what kind of peace-loving people we are, where, the dowry is something कि लड़की के साथ डॉरी भी चाहिए ultimately, यानी, and then भाई अगर गैस खुली रह गई तो एक घर में ऑन एन एवरेज, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि ऑन एन एवरेज 3 औरतें घर में हैं, मिसाल के तौर पे नंद, सास और बहू. तो ऐसा क्यों होता है कि 3 औरतों का अगर हम एवरेज मान ले एक फैमिली, तो गैस खुली रह गई तो उसमें बहू मरती है 99% केसेस में. भाई 33% ही तो डेथ होनी चाहिए ना बहू की, 66% दूसरी होनी चाहिए थी. यानी you see the intersectionality. Women are involved in the killing of women because of dowry. This kind of material society that if we are becoming, तो हमारा ये पूरा जो एजुकेशन सेटअप और हम AI और सारी चीजें डेवलप कर ले, and we are so desensitized, we are so indifferent to the plight of the people or the social evil that are already there in the society. Where is the movement? Where is the social movement against dowry in our country? बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट क्यों नहीं बिल्डअप हो पाया? हमारे यहाँ क्रिमिनलाइज तो कर दिया जाता, बट वेयर इज द जिसे कहते हैं सोशल ऑडिट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी हैव, और सोशल कंट्रोल क्यों नहीं है अल्टीमेटली? एंड दीज आर द इश्यूज दैट आर गोइंग टू बी taken up by all of us, whether we are teaching physics, chemistry, biology, engineering, medical, whatever. These are the issues. आज ऐसा क्यों हो जा रहा है कि डॉक्टर्स गुर्दे बेच दे रहे हैं? ऐसा क्यों हो जा रहा है कि जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं वहां ऑपरेशन कर दिए जा रहे हैं? द many nursing homes, they are becoming high-tech murder houses, high-tech slaughter houses, where a lot of testing that is not required. एक गरीब आदमी से आप 10,000 का टेस्ट कराते हैं, फिर 25,000 का ऑपरेशन कराने की बात करते हैं. Ultimately, why all these things are happening? And this is the reason that it's a welcome step by the government of India under NEP that multidisciplinary approach, holistic approach is to be developed so that we can provide solution to the problems of the society. Last point, that I must touch upon is, have you ever realized that we all are environmental terrorists? Those who are coming from our background. For example, I'm, already seeing Ahmed Saab, he has air condition. I also have, we all have air condition in our houses. आपके यहाँ AC लगा हुआ है. This AC we are using, for example, if the 45-degree temperature is there outside, and if we are using AC in our house, in our space, that is going to make our space very comfortable, very cozy. But what about the heat that it is going to generate in our neighborhood, and maybe in the neighborhood a person who is not in a position to afford AC? हमारे यहाँ हम लोगों के जो क्लास में है उसमें आमतौर पे 3-4 AC आप यूज कर रहे हैं, यानी अपनी कार में AC यूज कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में AC यूज कर रहे हैं, अपने घर पे 2 AC हर आदमी यूज कर रहा. तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में है और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में है, वी नेवर रियलाइज. वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वी टॉक अबाउट ओजोन डिप्लेशन, we talk about global warming. If our climate, if our planet is heating up, or if the global warming is increasing, or there is an acceleration in the pace of global warming, then the environmental terrorist that we have to realize this, because we have become individualistic. So that's why हम ये नहीं कहेंगे कि साहब वाटर सप्लाई सिस्टम ऐसा होना चाहिए क्लीन वाटर मिले. हम अपने घर में RO लगा लेंगे चूंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, और हम 1 गिलास पानी लेने के लिए 3 गिलास पानी गिराएंगे, वो फिल्टर करेगा.
और ये वेस्टेज ऑफ वाटर होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा कि एक बाल्टी पानी के लिए स्लम एरिया में लोग लड़ रहे होंगे। आप देखेंगे कि वहाँ सप्लाई का जब पानी आ रहा है तो लोग लड़ रहे होते हैं, उसमें मर्डर तक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। So ultimately, where is that holistic approach, the holistic development of the society? Why not we talk about? It is not only the development of the few, but the development of all. And here you see, I want to quote Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi has rightly said, that the future is in Ram Raj. And Ram Raj means, according to Gandhi, it is self-sufficient, self-reliant villages. He said that the villages should be self-reliant, self-sufficient. There should be autonomous republics and these villages, he said, all the development must be in complete harmony with nature. We should not try to conquer nature, rather we should try to live in complete harmony with nature. And lastly, he said that what should be there? It is not the mass production of the goods is needed, but the production by the masses is needed. I started my discussion about the virtual spaces. I talked about the virtual teacher, that the AI, etc. And therefore, the people are saying that the 80% of the job that we have today, they will be lost in coming 10 years. And ultimately, when the 80% of the jobs are lost, and if AI is going to be engaged in the production, technology is going to do everything, then what will happen to the human beings? So ultimately we will become dependent upon the state or upon the society. And finally, when the starvation, unemployment, hunger, that will be there, it will of course develop conflict, social tension, unrest, and that way the peace will be elusive. And this is the reason that the teachers who are sitting, they are not only there to pass information, but they are also there to sensitize not only their own students, but also the policymakers. I think this is our responsibility. With this, I'm going to wind up, and I'm going to welcome all your questions if you are going to ask questions or if you have to give an observation. Thank you very much. So the class is open for discussion or observation or class, question if you want to ask. Yes, Shruti, please ask question. So, No. what should be done to decrease this gender inequality in the society? What steps on the part of as a part on small steps that we can take? Basically, what has happened is that we have tried to find a legal solution to a social problem. The laws are not enough. It is not a legal problem. So what has happened that most of the time we try to criminalize many things, and we say that, the laws should be made, but the laws are not enough. Stringent punishment is there for rape and murder, but it happens in the society. So therefore, it's a social problem. It's a social evil where jisko subaltern, the Ranajit Guha and others, they point out that this is the relation of subordination and domination. So basically, first of all, the value system itself is responsible, where the subordination of women is something that we have accepted as normal. So this normalization of subordination of women in the society itself is very, very, a dangerous trend. A society cannot prosper. So first of all, it is sensitization. अगर आपने अपनी क्लास में सेंसिटाइज किया जेंडर इक्वालिटी पे, जेंडर जस्टिस पे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि we can create an army of the students who are very much sensitive towards the gender equality and gender justice. And at least अगर हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, हम उनको इतना सेंसिटाइज कर देते हैं कि बेटा कभी आपको जहेज नहीं लेना है, या बेटी आपको कभी सबमिट नहीं करना है यानी एक्सप्लॉइटेशन के सामने। आजकल देखिए सीबीएसई का जब रिजल्ट आता है तो आपको खुशी होती है कि टॉपर्स में बड़ी तादाद लड़कियों की होती है, यानी मेल से ज्यादा। आप हमारे यहाँ जब ये कॉन्वोकेशन होता है, आई सी दैट द गर्ल्स आर डूइंग बेटर देन बॉयज। तो ये तो पूरा मिथ ही खत्म हो गया ना कि औरतें जो है सबऑर्डिनेट रहेंगी और उनको घर के अंदर रह करके ये सब काम करना है। नो, नॉट एट ऑल।
So that I think, since we are not policy makers, but we can sensitize people about the plight of the women. और उसके लिए शुरुआत वहीं से करना पड़ती है कि दुनिया में शायद सबसे प्यारा कोई रिश्ता होता है किसी के लिए भी, तो वो माँ का होता है। माँ से जितनी मोहब्बत होती है उतनी किसी को और किसी से शायद नहीं होती उतनी। तो जो माँ का रोल में जब हम औरत को देखते हैं, बहन के रोल में देखते हैं, तो वो डिफरेंट होता है, बेटी के रोल में तो डिफरेंट होता है। लेकिन फिर जब दूसरा मामला आता है, यानी दूसरे घर की औरत जब हमारे घर में बहू बन के आती है, उस पे एटीट्यूड फिर चेंज होता है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ not a legal problem, it's a social problem. So that is why sensitization, social sensitization is the first step that should be taken. हेलो सर, गुड इवनिंग। फराज फ्रॉम अलबरकात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सर, इसमें एक चीज बस ये पॉइंट रखना था कि आपने सर ये जो बात कही कि जेंडर सेंसिटाइजेशन और ये, लेकिन इसका ये जो थोड़ा सा इल्जाम लगता है कि मतलब ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन वाले लोग हैं ये थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, खासकर यूजुअली यूएस वगैरह में जो पूरा उसके खिलाफ मूवमेंट चला। मतलब आपने देखा ये इनको कहने लगे कि ये तो लूनी लेफ्ट है, और ये जो रिपब्लिकन पूरा मूवमेंट इसी पे हो गया कि भाई ये जो हैं बहुत लोग ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। खास करके जो रिसेंट रिपोर्ट आई कि एशियन विमेन इन द यूएस आर अर्निंग मोर देन व्हाइट मेन इन द यूएस, और उसके खिलाफ पूरा इलेक्शन अगर आपने देखा होगा तो काफी हद तक इसी लाइंस पे हो गया कि भाई व्हाइट मेन जो हैं खास करके वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने वोट किया, और ब्लैक विमेन जो हैं उन्होंने कमला हैरिस के लिए वोट किया, और खास करके एलॉन मस्क वगैरह ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से ये जो सोसाइटी में करने की बात है, और ये इसके खिलाफ जो एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं कि मूवमेंट शुरू हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट बन गया है। क्योंकि अगर उसकी बात करते हैं तो वो ये करते हैं, मतलब दे आर पुशिंग द लेफ्टिस्ट नैरेटिव, ये कहने लगे, और इनको जो है कहने लगे दे आर पुशिंग अ नैरेटिव दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, और ये सारी चीजें कहने लगे। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन पैदा हो गई है रिसेंटली यूएस में खास करके, और यूरोप में जो फार I राइट think you have made your point. I think you should have economy of words. You have made your point, and I understood. But you see, you must have heard about it. The social constructivist, they say that truth is a social construct. So when the truth is a social construct, it means those who are in power, basically they construct a narrative. So in the society, almost all the societies of the world, they have maintained a relation of subordination and domination so far as gender relations are concerned. So therefore, when the women are coming up, whether the black or the white, whatever, or the diaspora, the political narrative is very different at the time of election that the people are going to, construct. So basically what happens, this villainization you will find, or for example, sometimes you will find that the over domination of women, or women are blamed that they are becoming more aggressive, more assertive, and that should be something that should be appreciated. They are assertive, and they are coming out, and they are trying to find their place in the society rather than discouraging it. I think that is a very good sign, and we should be very happy. इसलिए कि हम अगर मेल होकर के सोचे तो हमें ये भी सोचे कि हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है। तो अल्टीमेटली हम अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँ और अपनी बहन के लिए कौन सा मकाम चाहते हैं सोसाइटी में? सबऑर्डिनेट रिलेशंस, सबऑर्डिनेट पोजीशन? नो, वी वांट देम टू लिव विद डिग्निटी। तो अल्टीमेटली ये जो अगर वो औरतें असर्ट कर रही हैं और इस पे अगर कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो they suffer from some kind of prejudices. They have their primordial approaches, or what we call narrow-mindedness. So ultimately, rather accepting as a threat, we should appreciate it. थैंक यू। Anybody else? जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम अहमद नदीम है और मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ अलबरकात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि हम स्टूडेंट्स के करिकुलम में ऐसी कौन सी तब्दीली लाएं, ऐसा क्या करें जिससे ये जेंडर इक्वालिटी और उनकी ये समझ आगे चल के कुछ सालों में बेहतर हो? या आपको लगता है कि नहीं, अभी हमें सबसे पहले टीचर्स पे काम करना चाहिए, फिर हम स्टूडेंट्स पे काम करेंगे? आपकी राय जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल है ये।
आपको बहुत मुबारकबाद कि आपका सवाल बहुत ही गहरा है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि करिकुलम आपके कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं है। करिकुलम इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज। आपके अगर आप अलबरकात में हैं तो आपको एक करिकुलम को फॉलो करना होता है, एक खास किस्म के सिलेबस को भी फॉलो करना होता है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उसमें तो जितनी चीजें आप शामिल कर सकते हैं करें, जहाँ पे भी स्पेसेस है। लेकिन बेसिकली जो हमारा अपना एजुकेशनल स्पेस है, यानी स्कूल का या कॉलेज का, उस स्पेस में जेंडर सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मैनेजमेंट से लेकर के टीचर्स के बिहेवियर तक, हर जगह। वो जेंडर सेंसिटिविटी उस वक्त रिफ्लेक्ट होगी कि जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज से आगे बढ़ के मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स को और प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि उनका बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें दे वर नॉट ऑफर्ड दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, keeping in view that the boy should not means the other should not develop, striking a balance between the aspirations of the boys as well as girls, that is the biggest challenge in this kind of spaces. And this is the reason that we must do this, that it should be reflected in the policy of the management as well as in our own attitude as a teacher. तो सबसे पहले आपने सही कहा, सबसे पहले तो टीचर्स को सेंसिटाइज करना होगा कि आपकी लैंग्वेज क्लास में किस तरह की है। आप जब बातें करते हैं, यानी बहुत सारे मिसोजिनस जोक्स होते हैं जो लड़कियों पे, औरतों पे, छोटे बच्चों के सामने भी आप क्रैक कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इन एजुकेशनल स्पेसेस में। इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। थैंक यू सर। और कोई और कोई पार्टिसिपेंट्स? Professor Mohibul Haq Sahab, your lecture was really very informative, and our participants took a great interest in your lecture, because you are not delivering a lecture, but you are telling a story. एक दास्तां आप सुना रहे थे समाज की, स्टोरी ऑफ सोसाइटी, जो कि बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो हमारे सामने से तमाम वाकयात गुजरते रहते हैं। यही होता है, मैंने कहा था अपने गुफ्तगू के शुरुआत में कि यही होता है कि जब इंसान की जिंदगी से गुजरने वाली चीजें कोई बयान करता है तो इंसान उसके अंदर अपना माजी, अपना मुस्तकबिल और अपना हाल तलाश करने लगता है। तो यही सूरत हाल कमोबेश आपके लेक्चर की थी कि उसमें आपने तमाम उन चीज़ें को कवर करने की कोशिश करी, और बहैसियत टीचर हमारे जो ये 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। तो अगर इस लेक्चर को और इसके अलावा जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, खुसूसी तौर पे आपका लेक्चर इसलिए बहुत, मैं समझता हूँ कि मीनिंगफुल और इंस्ट्रूमेंटल है टीचर्स के लिए, क्योंकि ये तमाम बातें जो हैं वो एक टीचर अपने सामने महसूस करता है, और जब वो इसको महसूस करता है तो उसके लिए, उसका तदारुक करने के लिए, उसकी रेमेडी करने के लिए उसके पास कुछ थॉट्स होना चाहिए। तो ये थॉट्स आपने में अच्छे खासे थॉट आपने प्रोवाइड कराए। आप गौर करिए कि इस सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पूरा इतना बड़ा बैंक है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, उसके बावजूद भी जब कोई एक अच्छा उस्ताद एक अच्छी तरह से उसे एक्सप्रेस करता है, तो इस दौर में भी ऐसा लगता है कि हमें कहीं एक रोशनी की एक रमक और एक चमक दिखाई दी, और वो चमक जो थी वो हमने आपके लेक्चर में महसूस की। तो आई एम वेरी थैंकफुल, एंड ऑन बिहाफ ऑफ HRDC एंड ऑन बिहाफ ऑफ वर्दी participants, I extend my thanks and gratitude for coming here and for sparing your valuable thoughts. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. मैं Thank सर बहुत Mainly- participant Thank you, sir. Thank you. को मैं अपने Mainly participants को एक बात Thank you, बता sir. दूं, Thank you. participants Thank you, sir. Please. Very nice. Thank you, sir. आप एक बात और समझ लीजिए, Thank you so much, sir. पार्टिसिपेंट से एक बात शेयर करना चाहता हूँ मैं, और ये बहुत देर तक फॉर्मल रहे
थैंक यू सो मच प्रोफेसर मुहिबुल हक और साहब बहुत देर तक फॉर्मल रहे, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग में बहुत ज्यादा सब चीजों से बात शेयरिंग हम लोग बहुत शेयर करते हैं लेक्चर के बाद, लेक्चर के शुरू में। ही इज माई सिंगल फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। तो ये मेरे अलीगढ़ के दुनिया